Okay, dear student, last time we discussed about some diseases, that is bacterial disease, typhoid, then Vibrio cholerae, or any other, many other diseases. So from that point, we now continue with the Helminth disease. So Helminth disease includes Ascariasis and Filariasis. So these two Helminth disease today we need to cover. So this Helminth disease, that is Ascariosis, you see here Ascariosis is caused by Ascaris, and this Ascaris generally causes the anemia in humans. Along with it causes muscular pain. This muscular pain is very dangerous, which causes very severe problem in human being. Intestinal blockage is also carried out by this pathogen. So when we discuss ascariasis, so ascariasis is mainly transferred through contaminated water, then food. These are the key factors through which, in addition to this, that vegetable is also a source of transmission of ascariasis. So ascariasis generally goes to other human being via the vegetables, vegetables. So when we eat the raw vegetables, the egg of ascaris enters and which causes the intestinal infection. So another ascariasis is that is elephantiasis. That is Wucheria bronchopti is the pathogen. This pathogen generally causes the elephantiasis. So this pathogen grow in a lymphoid system, which causes the chronic inflammation, and this inflammation leads to swelling of that organ, and that leads to causes the elephantiasis. बोले तो हत्ती के जैसा उसका पैर हो जाता है because of swelling of that particular organ due to the development of ascariasis in that lymphoid system. So now we discuss another disease that is caused by fungi, fungi. So fungi generally cause ringworm, खुजली बोलते हैं उसको हम. और ये खुजली microsporum is the fungi, then trichophyton and endotrichophyton, these are the fungal species. ये तीनों मिलके ringworm cause करता है, and because of that ringworm हमें खुजली हो जाती है. तो ये खुजली क्यों होती है कि योर स्किन इज वेरी वेट, मीन्स गीली रह जाती है, और wearing of tight clothes and little bit moisture leads to cause a ringworm disease, right? रिंगवर्म का कॉज क्यों होता है कि हम कपड़े टाइट पहनते हैं और थोड़ा मॉइस्चराइज स्किन हो जाती है, उस वजह से ये रिंगवर्म हो जाता है. और रिंगवर्म कॉज कौन करता है? रिंगवर्म ये पैथोजन है जनरली फंगस, दैट इज माइक्रोस्पोरम, then epidermophyton and trichophyton. These are the fungus which generally leads to cause diseases in human being, right? So हम अब preventive measures के बारे में बात करेंगे. That is preventive measures. So how the disease can be prevented. So हम कैसे disease को prevent कर सकते हैं? तो one thing है पर्सनल हाइजीन. सो जो पर्सनल हाइजीन है प्रिवेंटिव मेजर्स में, पर्सनल हाइजीन और पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. पर्सनल हाइजीन और
पब्लिक हाइजीन। सो पर्सनल हाइजीन में हम क्या डिस्कस करेंगे? तो पर्सनल हाइजीन में हम ये बात करेंगे कि हमें साफ सुथरा रहना जरूरी है। वी नीड टू कीप क्लीन आवर सेल्फ। जब तक हम क्लीन नहीं रहेंगे तब तक पैथोजन हमारे बॉडी में आते रहेंगे। तो पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट एवर द excreta we have excreta which must be deposited in deposited in deposited in safe places. So that is septic tank, right? That should not be dumped directly into water reservoir. So that we should take care, so that that comes under public 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 hygiene. Public hygiene is very important. So खुद साफ सुथरा रहना जरूरी है। When we drink water, that water should be पोटेबल वाटर। जो भी वेजिटेबल है उस वेजिटेबल को हमको अच्छे से धोना है और फिर उसको यूज करना है। तो पैथोजन जनरली ट्रांसफर थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। सो पर्सनल हाइजीन जरूरी है। हम अपना खुद का ख्याल रखना चाहिए और जो पब्लिक है हमें पब्लिक का भी ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि विदाउट सोसाइटी आवर एग्जिस्टेंस इज जीरो। हम सोसाइटी के बगैर नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए ये पब्लिक हाइजीन कुछ भी डायरेक्टली शुड नॉट बी डम्प्ड इनटू द वाटर रिजर्वायर, बिकॉज वाटर रिजर्वायर ये बहुत सारे लोगों को, जो वाटर रिजर्वायर है जैसे लेक है और कोई वेल है, वो वेल है जनरली, तो इससे क्या होता है, पानी हम पूरे इलाके को या विलेज को हम पानी देते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पब्लिक हाइजीन हमको मेंटेन करना है। और सम रेस्पिरेटरी डिसीजेस आपको पता है, कॉमन कोल्ड विच इज कॉज्ड बाय रीनो वायरस। ये कॉमन कोल्ड भी हम अगर खुद कुछ यूज नहीं करे, मास्क नहीं लगाए, तो ये अदर ह्यूमन को तकलीफ देता है। इसलिए पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन शुड बी मेंटेन, वो मेंटेन रखना जरूरी है। इसके अलावा जो भी मस्कीटो बॉर्न डिसीज है, वेक्टर्न बॉर्न डिसीज है, हम उसको बोलते हैं वेक्टर्न बॉर्न डिसीज। अब जो ये वेक्टर्न बॉर्न डिसीज है, ये मच्छर से फैलता है। तो मच्छर का ब्रीडिंग प्लेस है स्टैग्नेंट वाटर। So stagnant water is a place where the mosquito laying their egg and वहां से लार्वी पैदा होता है, और लार्वी होने के बाद वो मच्छर में रूपांतरित हो जाता है। तो इसलिए इसको बहुत जरूरी है, हमको ये मेंटेन करना जरूरी है कि वो जो स्टैग्नेंट वाटर है उसके अंदर हम गैम्बूसिया फिश डालेंगे। कौन से फिश? गैम्बूसिया। सो ये फिश क्या करेंगे, ये फिश लार्वे को खा जाएंगे। अब जब लार्वे को ये फिश खा जाएंगे तो मॉस्किटो का उत्पाद कम होगा, और उसके वजह से वी कैन प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ वेक्टर बॉर्न डिसीजेस। जैसे कि हम मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगा सकते हैं, नेट लगा सकते हैं, मॉस्किटो नेट लगा सकते हैं, और इस हिसाब से हम क्या करेंगे, वो जो पैथोजन है ट्रांसफर होने से थ्रू वेक्टर्स हम बचा सकते हैं। ये कुछ पर्सनल हाइजीन थी जो हमको जरूरी है टू प्रिवेंट द डिसीज। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के बारे में थिंक करेंगे। अभी हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, दैट इज द इम्यूनिटी। सो आप सबको मालूम है इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ होस्ट फ्रॉम इन्वेडिंग पैथोजन। जो पैथोजन बाहर से हमारे बॉडी में आते हैं, तो हमारी बॉडी उस पैथोजन को फाइट करके भगा देती है। उसको इम्यूनिटी हम बोलते हैं। वी कंसिडर दिस इज द इम्यूनिटी। इट इज द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। सो इम्यूनिटी
हमें दो टाइप की इम्यूनिटी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इनेट इम्यूनिटी और अक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट। सो इम्यूनिटी दो प्रकार की है। So immunity is protection, the state of protection from infectious pathogen. हम रोजाना बहुत सारे पैथोजन से सराउंड होते हैं और वो पैथोजन हमारे बॉडी में आते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर इम्यूनिटी वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस इन्वेडिंग पैथोजन। सो इन्वेडिंग पैथोजन से हम खुद प्रोटेक्ट करते हैं और ये बॉडी की ओन मैकेनिज्म है। तो इनेट इम्यूनिटी, तो इनेट इम्यूनिटी क्या है? इनेट इम्यूनिटी मीन्स इट इज नॉन स्पेसिफिक। ये कैसा है? नॉन स्पेसिफिक है। कौन सी इम्यूनिटी? इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मीन्स इट कैन कंट्रोल एंट्री ऑफ एनी पैथोजन इनटू बॉडी। एनी पैथोजन जब हमारे बॉडी में एंट्री करेगा उसको ये इनेट इम्यूनिटी नहीं अंदर आने देगी। वो नॉन स्पेसिफिक है। इट वर्क्स अगेन all kinds of pathogen, all kinds of pathogen, all kinds of pathogen are controlled by non-specific immunity और उसको हम innate immunity बोलते हैं। तो ये कैसे प्रोटेक्ट करती है? व्हाट आर द mechanism of innate immunity? We can say mechanism of innate immunity। innate immunity, तो मैकेनिज्म कैसी है innate immunity की? कि एक है फिजियोलॉजिकल बैरियर। एक तो है क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आता है? हमारा स्किन है। तो एवरी इंडिविजुअल हम अपने स्किन से प्रोटेक्टेड है। तो आप समझो एक यंग इंसान है या ह्यूमन बींग है, अराउंड 2 मीटर और 2.5 मीटर लंबी पूरी बॉडी को स्किन कवर करता है। ये स्किन क्या करता है? ये स्किन सिक्रेट सम केमिकल्स। ये कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि सीबम। सीबम केमिकल करता है। फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है। फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है, राइट। और ये फैटी एसिड, सीबम, NaCl, NaCl भी हमारी ये स्किन सिक्रेट करती है। और बिकॉज ऑफ दैट दे किल्स अदर पैथोजेंस विच रिसाइड्स ऑन, जो पैथोजन विच रिसाइड्स ऑन आवर बॉडी, हमारे बॉडी पे जो भी रिसाइड करेंगे उस पैथोजन को ये खत्म करेंगे। ये फैटी एसिड्स है और इसके एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, इसलिए ये फिजिकल बैरियर है हमारी स्किन। दूसरा फिजिकल बैरियर है म्यूकस। जो भी हमारे बॉडी है, सो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इफ यू सी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज लाइन विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। ये लाइन पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। दिस म्यूकस मेम्ब्रेन इज स्टिकी इन नेचर। स्टिकी इन नेचर, ये स्टिकी रहता है। और जो भी पैथोजन आता है दे ट्रैप्ड इनटू दिस स्टिकी मेम्ब्रेन एंड इसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड रहता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड, इसके अंदर क्या रहता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड रहता है। और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो है वो पैथोजन को मार देता है। इसलिए ये इनेट बैरियर है और फिजिकल बैरियर है। ऐसे ही लाइनिंग, यूरेथ्रल लाइनिंग में रहते हैं। देन म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो मेल फीमेल यूरेथ्रल लाइनिंग में रहते हैं। स्टमक में इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रहते हैं, लाइनिंग रहते हैं, म्यूकस लाइनिंग। and this mucus lining has ability to kills the pathogen, right। तो ये हो गया हमारा फिजिकल बैरियर, राइट। सो ये फिजिकल बैरियर जो है हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, फिजिकल बैरियर, तो अभी हम इसको ठीक से डिस्कस करेंगे। फिजिकल बैरियर, तो फिजिकल बैरियर, अभी फिजियोलॉजिकल बैरियर हम अभी जो डिस्कस करेंगे वो फिजियोलॉजिकल
बैरियर के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर. सो फिजियोलॉजिकल बैरियर मीन्स सर्टन केमिकल्स, जो केमिकल्स है वो केमिकल्स जो बॉडी में है वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं. जैसे कि स्टमक, स्टमक में जो पीएच है वो जनरली 2 to 3 रहता है, एसिडिक रहता है. स्टमक एनवायरनमेंट कैसा है? एसिडिक है. और ये एसिडिक होने के वजह से मोस्ट ऑफ द जो पैथोजन है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं करेंगे. उनको पीएच कितना लगता है? 7 pH लगता है, न्यूट्रल पीएच लगता है. लेकिन बिकॉज ऑफ एसिडिटी इन स्टमक, एसिडिटी स्टमक में होने के वजह से मेनी पैथोजन कुड नॉट सर्वाइव एट हाई एसिडिटी ऑफ द स्टमक. सो दूसरा जो बैरियर्स है, टीयर सिक्रीशंस. हमारा जो टीयर है, टीयर टीयर सिक्रीशन, टीयर सिक्रीशन है. ये टीयर सिक्रीशन क्या करेगा? ये टीयर सिक्रीशंस में जो साल्ट रहेगा अंदर, टीयर NaCl रहेगा, थोड़ा खारा रहता है वो. और उसके अंदर लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम्स रहता है. और ये एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा? ये लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरियल सेल को ब्रेक डाउन करेगा. इट ब्रेक डाउन द बैक्टीरियल सेल, इट्स ब्रेकिंग द बैक्टीरियल सेल. ये बैक्टीरियल सेल को ब्रेक डाउन करेगा. कौन? लाइसोजाइम विच प्रेजेंट इन टीयर्स. सो तीसरा फैक्टर है लाइसोसोम, मीन्स सलाइवा, सलाइवा सिक्रीशंस, सलाइवा सिक्रीशन. ये सलाइवा सिक्रीशन जो है, ये सलाइवा सिक्रीशन जनरली अपने माउथ में है. और ये सलाइवा कंटेन, सलाइवा में क्या क्या रहता है? सलाइवा कंटेन lysozyme again. This is antimicrobial, this lysozyme has antimicrobial property, right? इसमें एंजाइम्स रहते हैं. सलाइवा आल्सो कंटेन एंजाइम्स. सलाइवा में क्या रहते हैं? एंजाइम्स रहते हैं. सलाइवा में एंजाइम्स रहता है. और ये एंजाइम्स भी बहुत सारे जो ये है बैक्टीरियल सेल वॉल है, उसको तोड़ेंगे. ये एंजाइम्स प्रोटीएज एंजाइम रहता है. तो बहुत सारे एंजाइम्स है, दे आर वेरी यूजफुल टू kills the invading pathogen. So वो फिजियोलॉजिकल जो बैरियर है, बिकॉज ऑफ दैट बैरियर हमने बहुत सारे जो बाहर से पैथोजन आते हैं उनको किल करते हैं. इसीलिए ये इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. अब जो फिजियोलॉजिकल बैरियर में अभी आपने देखा कि लाइसोजाइम, टीयर्स, राइट, स्किन सिक्रीशंस, ये सब मिलके ये जो पैथोजन है वो पैथोजन को किल करते हैं. अभी सेलुलर फैक्टर है, हम अभी सेलुलर फैक्टर को थोड़ा वाइडली इलाबोरेट करेंगे. सो अभी जो बॉडी के अंदर है, आप प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है कि देर आर WBCs इन आवर बॉडी एंड दिस WBC किल्स मेनी पैथोजन्स. WBC क्या करता है? बहुत सारे पैथोजन को किल करता है. तो वो फैगोसाइटिक एक्शन करता है. विच एक्शन दे परफॉर्म? दे परफॉर्म द फैगोसाइटिक एक्शन. ऑफ फैगोसाइटिक बोले तो एक सेल दूसरे सेल को खाता है. तो बॉडी में जो WBC है, their main role is to damages or kills the cell which either produce in body by means of any other defect or some pathogen which enters in body. So the cellular factor जो है, हम अभी जो सेलुलर फैक्टर है, ये सेलुलर फैक्टर में हम अभी डिस्कस करेंगे हाउ we discuss cellular factors right now. So these cellular factors means that is cellular barrier. So phagocytic cell,
सो ये फैगोसाइटिक सेल क्या करेगा, सपोज दिस इज द पैथोजन है और ये फैगोसाइटिक सेल है, तो ये फैगोसाइटिक सेल जो है ये पैथोजन को अट्रैक्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, फिर अट्रैक्ट करने के बाद उसको बाय प्रोड्यूसिंग सीडोपोडिया वो उसको एंगल्फ कर लेंगे। बाद में ये इनसाइड द सेल आ जाएगा और सेल के अंदर लाइसोसोम रहता है। दिस लाइसोसोम फ्यूज विद दिस पैथोजन, ये पैथोजन को वो फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद वो फैगोलाइसोसोम प्रोड्यूस करेगा, फैगोलाइसोसोम। और फिर ये जो लाइसोसोम है दिस इज कॉल्ड एज सुसाइडल बॉडी, और ये फैगोसोम उसको किल कर देगा। और फाइनली दिस पैथोजेंस आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेल। ये सेलुलर बैरियर है फैगोसाइटोसिस। तो कौन से सेल है, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल सेल है अपने बॉडी में, वो फैगोसाइटिक करेंगे। मैक्रोफाजेस है, macrophages say there are many macrophages, this macrophages kills the foreign pathogen जो अपने बॉडी में आता है, उसको ये सेलुलर फैक्टर से किल करेगा, फैगोसाइटोसिस करेगा और किल कर देगा। तो बहुत सारे मैक्रोफाजेस है, न्यूट्रोफिल्स है, यन के सेल्स है। यन के सेल्स मीन्स नेचुरल किलर सेल। ये नेचुरल किलर सेल्स उसको किल कर देगा और इस तरह से वो हमारा इनेट इम्यूनिटी जो है उसको और स्ट्रेंथन करेगा। और ये एक फैक्टर्स है, ये एक फैक्टर्स है विच हेल्प अस फ्रॉम इन इन्वेडिंग पैथोजन बाय मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। अभी साइटोकाइन बैरियर्स है। अभी ये साइटोकाइन क्या रहता है, अभी एक सेल है एंड दिस इज द वायरस, this is the virus, so any virus, so this virus is trying to enter in a cell। अगर ये सेल में गया तो it develop many viruses and this cell in return produce certain chemicals that is called as हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स अभी ये सेल प्रोड्यूस कर देगा, लार्ज नंबर ऑफ इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स नियर बाय सेल जो दूसरा सेल है वो ये इंटरफेरॉन ले लेगा और ये सेल क्या करेगा, ये सेल रजिस्ट करेगा। दिस सेल इज रजिस्ट, रजिस्ट कैसा रजिस्ट करेगा, अब ये सेल इंटरफेरॉन ले लेगा और खुद स्ट्रांग बन जाएगा। तो न्यू वायरस, new virus particle cannot attack the other cell. So this is very specific, interferon protect the other cell from invading pathogens। so ये सेलुलर साइटोकाइन बैरियर है, ये जो पूरा था ये पूरा इनेट इम्यूनिटी का था। अब हम क्या करेंगे, भी हम डिस्कस करेंगे अक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो इनेट इम्यूनिटी हमने तो डिस्कस कर लिया। सो अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी ये हम अक्वायर्ड कराते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल है हम अपने लाइफ टाइम में ये इम्यूनिटी अक्वायर्ड करते हैं। सो अक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लाइफ टाइम में करते हैं। तो इम्यूनिटी जो अक्वायर्ड करेंगे वो एक्टिव इम्यूनिटी है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, राइट। सो अक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी एक्टिव इम्यूनिटी और इट में भी पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है, ये एक्टिव इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, ये ड्यूरिंग लाइफ टाइम हम इसको लाइफ टाइम में अक्वायर्ड करते हैं ये इम्यूनिटी को। जब हम इसको अक्वायर्ड करेंगे हमारी लाइफ टाइम में, तो हाउ इट स्टार्ट्स, एक्टिव इम्यूनिटी, सपोज एनी पैथोजन जब हमारे बॉडी के अंदर आता है, एनी पैथोजन व्हेन एंटर्स इन आवर बॉडी, our body has many cells in it, typically b lymphocyte b lymphocytes
and T lymphocytes ये दो lymphocytes आर इम्यूनोलॉजिकल सेल्स, ये जो है ये इम्यूनोलॉजिकल सेल है। अब B lymphocytes and T lymphocytes generally carry out the active immunity. So active immunity, जब natural pathogen enters in your body takes its own time to recognize the pathogen। वो पैथोजन को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, इस रिकॉग्नाइज द पैथोजन। अब रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, ये पैथोजन आ गया बाहर से, इसको बी सेल आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इज द बी सेल एंड दिस इज द पैथोजन, राइट। सो ये पैथोजन जो है, अभी बी सेल इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, बी सेल को हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी बोलते हैं। और ये सेल क्या करेगी, ये जो ब्लड में जो पैथोजन है उसको अंदर ले लेगी, और बी सेल स्टार्ट टू प्रोलिफरेट टू फॉर्म प्लाज्मा सेल, ये प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करेगा और मेमोरी सेल प्रोड्यूस करेगा। मेमोरी सेल, जब पैथोजन हमारे बॉडी में आएगा तो बी सेल स्टार्ट टू प्रोलिफरेट टू फॉर्म प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। अब ये प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, अभी ये जो प्लाज्मा सेल्स है, ये प्लाज्मा सेल्स जनरली क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। ये क्या कर देंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देंगे। और ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, अभी ब्लड में जाएंगे और जो भी पैथोजन आपके ब्लड में है उसको ऐसे बाइंड कर देंगे। जितने भी पैथोजन आपके ब्लड में है उसको ये एंटीबॉडी जाके बाइंड करेंगे ऐसे, और उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इस प्रकार का जो रिस्पांस रहता है, उस रिस्पांस को हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस बोलते हैं। कौन सा रिस्पांस, वी कॉल इट एज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस। ह्यूमोरल, हम उसको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस बोलते हैं। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस बोले, राइट। क्यों बोलेंगे उसको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस, बिकॉज इन दिस रिस्पांस एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उसको हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस बोलते हैं। अब ये जो एंटीबॉडी उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, फिर 14 दिन के बाद ये पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा और बॉडी के अंदर ये मेमोरी सेल क्या करेंगे, स्टोर्ड रहेंगे। बॉडी के अंदर कौन से सेल स्टोर्ड रहेंगे, अभी बॉडी के अंदर अभी कौन से सेल स्टोर्ड रहेंगे, मेमोरी सेल रहेंगे। कौन से सेल रहेंगे, मेमोरी सेल्स रहेंगे, मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स रहेंगे। अब ये जो मेमोरी सेल्स है, these are the memory cells in body, and pathogen coming second time, the same pathogen comes in a body second time, comes in a body second time। तो पहले टाइम में क्या होगा, जब पैथोजन अपनी बॉडी में आएगा, बी सेल उसको एक्ट करेगा, बी सेल प्रोलिफरेट होगा, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल बना देगा। प्लाज्मा सेल पूरे एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा और आने वाले पैथोजन को खत्म कर देगा। तो उसको बोलते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। फर्स्ट टाइम व्हेन फर्स्ट टाइम जब पैथोजन एंट्री करेगा और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा उसको किल करने के लिए, उसको प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे हम उसको, राइट। सो सेकंड टाइम द सेम पैथोजन एंटर्स, जो बॉडी में ये जो मेमोरी सेल है, ये मेमोरी सेल आइडेंटिफाई द पैथोजन सेकंड टाइम में क्या करेंगे, मेमोरी सेल आइडेंटिफाई, यहाँ बी सेल नहीं काम करेंगे, यहाँ मेमोरी सेल आइडेंटिफाई द पैथोजन एंड मेमोरी सेल
विद इन 1 to 2 days, उसको 14 दिन लगे थे ना। अभी 1 to 2 days में ये जो मेमोरी सेल है, दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल एंड अगेन मेमोरी सेल। सो दिस इज प्लाज्मा सेल, दिस इज प्लाज्मा सेल्स। ये प्लाज्मा सेल्स बहुत सारे एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देंगे विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। Within very short period of time they able to produce large number of antibodies, large number of antibodies। और ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, जो पैथोजन बॉडी में आया है वो पैथोजन को ये खत्म कर देंगे। ये बाइंड करेंगे पैथोजन को, ऐसा बाइंड करेंगे और ये पैथोजन को खत्म कर देंगे। अब ये इस तरह से खत्म कर देंगे विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज शॉर्ट as compared to primary immune response। So primary immune response में हम देखे हैं, primary immune response when we discuss primary immune response में जो इम्यूनोग्लोबिन बनता है, इम्यूनोग्लोबिन जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में बनता है इम्यूनोग्लोबिन, वो आईजीएम टाइप का होता है। कौन से टाइप का होता है? आईजीएम इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन से एंटीबॉडी होते हैं? आईजीएम होते हैं। इन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो रहता है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन होती है। तो ध्यान में रखिएगा, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीएम होता है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन होता है। तो जब हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन। यू रिमेंबर दिस, एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है। अब जब सेलुलर रिस्पॉन्स, सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स, वो जनरली टी सेल कैरी करता है। टी सेल परफॉर्म, बिकॉज ऑफ टी सेल सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स बनता है। सो इन सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स टी सेल्स टेक पार्ट्स, और इन ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में जो है वो बी सेल टेक पार्ट करता है। बी सेल इन एंटीबॉडी मेडिएटेड, उसको हम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स करते बोलते हैं, और ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। इसको दो प्रकार से बोला जाता है। अभी जो है टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, उसको सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाता है। और इन सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जब हम सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं तो टी सेल इसमें इन्वॉल्व होता है, और टी सेल बी सेल को हेल्प करता है। हेल्प, कौन हेल्प करता है? टी सेल हेल्प्स टू बी सेल in immune response, it helps to B cell so that they produce antibody, right? So T cell generally involve in cell mediated immunity, और ये जो सेल इम्यून रिस्पॉन्स है वो ऑर्गन, जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तब दैट दैट टाइम दिस रिस्पॉन्स इन्वॉल्व्स, ये रिस्पॉन्स इन्वॉल्व करता है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं उसको, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो जब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है तो हमें दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब भी कोई ऑर्गन हम किसी को डोनेट करते हैं तो दो इम्पोर्टेंट है, एक मैचिंग ऑफ ऑर्गन, मैचिंग,
मैचिंग ऑफ ग्राफ्ट बोलते हैं हम उसको। ये जरूरी है, मैचिंग ऑफ ग्राफ्ट। तो मैचिंग ऑफ ग्राफ्ट मीन्स वो ग्राफ्ट जब हम किसी को दे रहे हैं तो वो मैच करेगा, वो एंटीजन मैच करेगा, उसका एंटीजन मैच करता है या नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। और जो दूसरा भाग है, उसका दूसरा पार्ट है, तो हमें ब्लड ग्रुप मैचिंग करना जरूरी है। ब्लड ग्रुप मैचिंग, अगर हम ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं करेंगे और ग्राफ्ट मैचिंग नहीं करेंगे, तो ये जो डोनेट करने वाला ऑर्गन है वो रिजेक्ट कर देगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। जब रिजेक्ट हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है फिर। तो उस टाइम पे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इन जनरल हम जब बात करेंगे, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो जो पैथोजन सेल के अंदर है, इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर पैथोजन है उसके लिए ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम करेगा। और इस सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये वेरी स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, स्पेसिफिक है to that particular pathogen. So whole acquired immunity is very specific, और वो एक ही पैथोजन के लिए इंड्यूस होती है और एक ही पैथोजन के लिए वो काम करता है। अभी मैंने आपको बोला कि जो अभी मैंने बताया कि प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस होता है, उसमें मेमोरी सेल्स रहते हैं, मेमोरी सेल्स रहते हैं, राइट, सेल्स, मेमोरी सेल्स रहते हैं, मेमोरी सेल्स रहते हैं, राइट। सो ये जो मेमोरी सेल्स है ये बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं, दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी, राइट। तो अभी हमको इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। सो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस हम बोलते हैं जब फर्स्ट टाइम पैथोजन आया बॉडी के अंदर, फर्स्ट टाइम आया, बॉडी ने उसको 14 दिन लिए, 14 days इज टेक टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, राइट। और ये एंटीबॉडीज जब प्रोड्यूस हो गए, ये एंटीबॉडीज वैनिश हो जाएंगे और मेमोरी सेल्स रहेंगे, मेमोरी सेल्स रहेंगे। अब ये मेमोरी सेल्स स्टोर रहेंगे जब सेकंड टाइम सेम पैथोजन, सेकंड टाइम सेम पैथोजन जब आएगा, सेम पैथोजन बॉडी के अंदर जब आएगा, तो ये क्विक रिस्पांस देगी बॉडी, और उस पैथोजन को क्विक रिस्पांस देके, क्विक रिस्पांस देगी बॉडी, और क्विक रिस्पांस देके उसको खत्म करेगी। तो ये प्रिंसिपल हम वैक्सीन्स के अंदर लेते हैं। तो व्हाट इज वैक्सीन्स, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन्स आर, वैक्सीन्स आर इम्यून बूस्टर, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इट बूस्ट द इम्यून सिस्टम, राइट। तो ये एक्टिवेट करता है बॉडी को, एक्टिवेट, इट एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, राइट। एक्टिव इम्यूनिटी जागी करेगा, ये उसको जगा देगा, ये किसको, एक्टिव इम्यूनिटी को जगा देगा। तो पैथोजन जो रहता है वैक्सीन्स के अंदर वो किल रहता है, किल्ड पैथोजन रहता है, किल पैथोजन और पार्ट ऑफ पैथोजन, किल पैथोजन और पार्ट ऑफ द पैथोजन एक। और दूसरा जो है लाइव अटेन्यूएटेड बनता है, लाइव अटेन्यूएटेड। तो लाइव एटेन्यूएटेड में हम क्या करते हैं कि वो पैथोजन की जो पैथोजेनिसिटी है, उसकी पैथोजेनिसिटी जो है, पैथोजन की जो डिसीज कॉज करने की एबिलिटी है उसको रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूस, रिड्यूस किया जाता है। लेकिन उसकी इन्फेक्शन इंड्यूसिंग एबिलिटी जो है, इन्फेक्शन इंड्यूसिंग एबिलिटी जो है, उसकी जो एबिलिटी है वो एबिलिटी रिमेन सेम, वो एबिलिटी रिमेन सेम रहती है।
तो ऐसे जो वैक्सीन्स है वो कोई डिसीज कॉज नहीं करेगा, लेकिन इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर देगा। तो जेनर साहब ने जब वैक्सीन डिस्कवर्ड किया था, एडवर्ड जेनर ने, अ, तो वो उसका प्रिंसिपल यही था। स्मॉल पॉक्स जो डिसीज था वो आज खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। तो हम कौन से भी डिसीज को प्रिवेंशन करने के लिए वैक्सीन्स आर बेस्ट प्रैक्टिस। सो हम इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हम इसको जो है तो डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, इसीलिए वैक्सीन। तो अभी वैक्सीन्स के, अभी बोला मैंने लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और किल वैक्सीन। अभी नया ट्रेंड आया है इडिबल वैक्सीन। एडिबल वैक्सीन, सो एडिबल वैक्सीन में हम पैथोजन का कोई प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग जीन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और वो प्रोटीन हम बनाना या टोबैको में से ले सकते हैं और खुद इम्यूनाइज्ड हो जाते हैं। तो ये अभी इंडिया में जो जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, तो हेपेटाइटिस इज द वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। ये वायरस जो है इसका जो प्रोटीन है ईस्ट में जनरेट किया जाता है, ईस्ट के अंदर ये प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है। तो इंडिया में जो शांता बायोटेक है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी, वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन बेस्ड ऑन प्राइमरी यानी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, राइट। सो इस तरह से हम अपने बॉडी को इंड्यूस करते हैं, और वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम डिसीज बाय यूजिंग डिफरेंट वैक्सीन। सो वैक्सीन बहुत सारे हैं, बहुत सारे वैक्सीन हम कॉलेरा के अगेंस्ट यूज करते हैं, टाइफाइड के करते हैं, बीसीजी टीबी के अगेंस्ट हम उसको यूज कर सकते हैं। तो सो मेनी वैक्सीन आर अवेलेबल राइट नाउ इन इंडिया। कोविड में हमने देखा कि वो दो वैक्सीन हमने, कोविशील्ड और जो वैक्सीन्स है वो हम लिए थे। तो उस हिसाब से जो वैक्सीन बनाया था, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो इंडियंस है वो बच गए थे। और बहुत सारे वैक्सीन जो है इंडिया में अभी फिलहाल चालू है बच्चों को। वो इंद्रधनुष नाम का एक प्रोग्राम है, उसके अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। तो जरा हम क्या करेंगे अभी, जो है हम थोड़ा जो अपने एंटीबॉडी है वो कैसा दिखता है, ये कार्टून स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी जब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि एंटीबॉडी स्ट्रक्चर है। एंटीबॉडी इज प्रोटीन जनरली, एंटीबॉडी इज प्रोटीन, एंटीबॉडी प्रोटीन है, और ये प्रोटीन प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल्स when pathogen enters in your body produce antibodies, plasma cell produce antibodies। ये एंटीबॉडी में टू चेन है, ये चेन जो है उसको हम हेवी चेन बोलते हैं। हेवी चेन बिकॉज, क्यों बोलते हैं हेवी चेन, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट हायर है। और ये जो चेन है उसको हम लाइट चेन बोलते हैं, इसको हम लाइट चेन बोलते हैं, लाइट चेन, राइट। इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑब्वियसली हाफ देन हेवी चेन। अब ये लाइट चेन एंड हेवी चेन, लाइट चेन एंटीबॉडी को हम ऐसा ही बोलते हैं, हेवी चेन लाइट चेन, एलसी, एचसी एंड एलसी ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका ये जो टर्मिनल है वो नाइट्रोजन टर्मिनल है, कोई प्रोटीन का एक एंड नाइट्रोजन एंड है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एंड रहता है। तो जो भी एंटीजन है वो इसके नाइट्रोजन एंड को बाइंड करता है, मींस एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ है, आया ध्यान में। और ये जो रीजन है वो वेरिएबल रीजन है, इसके अंदर जो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर है वो वेरिएबल करते हैं, ये बाकी पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है दिस होल स्ट्रक्चर इज कांस्टेंट, राइट। तो ओनली वेरिएबल रीजन, वो अमाइनो एसिड इधर उधर वेरिएबल होके डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीजन को वो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का। इसके अंदर जो दो चेन है वो एस एस बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड से
बाउंड रहता है, ये बाउंड विथ सल्फाइड बॉन्ड से बाउंड होता है, सल्फाइड बॉन्ड से ये बाइंड होता है और ये अपने बॉडी में प्रोड्यूस होता है। सो अपने बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं इसको, एंटीबॉडी आईजीएम सबसे बड़ा रहता है, बिग मॉलिक्यूल। उसके बाद आईजीजी आईजीजी रहता है, इम्यूनोग्लोबिन आईजीजी। उसके बाद आईजीडी इम्यूनोग्लोबिन होता है, आईजीई इम्यूनोग्लोबिन होता है। उसके बाद हम अगर करें तो आईजी ये इम्यूनोग्लोबिन रहता है। तो इस तरह से इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं। ठीक है। अब जब हम पैसिव इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, पैसिव इम्यूनिटी, तो व्हेन वी कंसीडर द पैसिव इम्यूनिटी, जब हम पैसिव इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे, पैसिव बोले तो ये इम्यूनिटी ऐसी है जो इंडिविजुअल है, उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं बन रही है, द इंडिविजुअल विच डू नॉट हैव प्रॉपर इम्यूनिटी, सो ट्रांसफर we transfer the ready-made form of we transfer the ready-made forms of uh, immunity, we transfer to the individual whose immunity is weak. सो पैसिव इम्यूनिटी में जब हम डिस्कस करेंगे तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, तो ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, तो मदर अपने अपने बेबी को ये ट्रांसफर करता है ड्यूरिंग फोइटल लाइफ में ये उसको ट्रांसफर करेगा बेबी को, और आफ्टर बर्थ मदर उसको और एंटीबॉडी देंगे। जब बेबी उम के अंदर बेबी है, तो मदर थ्रू प्लासेंटा, ये प्लासेंटा से थ्रू प्लासेंटा मदर क्या करेगी, इम्यूनोग्लोबिन आईजीजी पास करेगी। तो ये आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन थ्रू प्लासेंटा टू बेबी जाएगा, और आफ्टर द बर्थ बेबी के बॉडी में आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन मदर से ट्रांसफर हो जाएंगे। ये पैसिव है, बेबी को अभी क्या है, बेबी को अभी वो सिस्टम डेवलप नहीं है, तो वो आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज जो है उसके बाद बेबी इसको डेवलप करेगी। राइट। तो अब ये अंडर आफ्टर बिफोर बर्थ है। अब आफ्टर बर्थ क्या करेगा, जो मदर है वो एक मिल्क प्रोड्यूस करेगा आफ्टर द बर्थ, दैट मिल्क को कोलोस्ट्रोम बोलते हैं, कोलोस्ट्रोम, उस मिल्क को क्या बोलेंगे हम, कोलोस्ट्रोम बोलेंगे। और ये कोलोस्ट्रोम में इम्यूनोग्लोबिन आईजीए रहता है। ये इम्यूनोग्लोबिन आईजीए बेबी के जो आफ्टर बर्थ पेट में जो भी पैथोजन गए हैं, वो पूरे पैथोजन को ये किल कर देगा। इसीलिए ये पैसिवली ट्रांसफर है फ्रॉम मदर टू बेबी बाय नेचुरल वेज। ये कौन से वे से हुआ, नेचुरल वे से मदर टू बेबी दिस एंटीबॉडी इज ट्रांसफर्ड, राइट। सो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल क्या है, कि स्नेक बाइटिंग हो गया, तो जो एंटीवेनम एंटीवेनम जो है, ये एंटीवेनम में स्नेक के अगेंस्ट एंटीबॉडीज रहते हैं रेडीमेड फॉर्म में, वी कैन से रेडीमेड फॉर्म में जो है ये यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, और एंटीवेनम सडन प्रोटेक्शन टू जो बाइट हो गया है उसको दे देगा। ठीक है। गैस गैंग्रीन में भी हम इसी तरह से रेडीमेड फॉर्म ऑफ पैसिव इम्यूनिटी उनको देते हैं। तो अभी पैसिव इम्यूनिटी का आपको क्लियर हो गया। तो अब हम डिस्कस करेंगे एलर्जी। तो आपको पता है एलर्जी एक असामान्य कंडीशन है, इट इज exaggerated reaction of immune system exaggerated exaggerated
exaggerated reaction of immune system. आपको पता हो गया ये एग्जैगरेटेड इम्यून रेस्पॉन्स हो जाता है एलर्जी में। तो ये क्यों होता है जब फेटल लाइफ जो होती है, फेटल लाइफ में कुछ चीजें ऐसी रहती है वहां पे पूरे बॉडी को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, सराउंडिंग को recognize करते हैं, surrounding antigens, we recognize the surrounding antigens, and these surrounding antigens, when we are not familiar after the fetal life, this allergen जो भी है, पोलन ग्रेन है, डेंडर है, जो भी एलर्जन है, वो एलर्जन क्या करेंगे, बॉडी के अंदर एंट्री करेंगे, बॉडी एग्जैगरेटेड रिएक्शन देगी, एग्जैगरेट रिएक्शन देगी, और इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, जब ये अंदर आएगा तो ये बॉडी के अंदर इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करेगा और इम्यूनोग्लोबिन आईजीई प्रोड्यूस कर देगा, इम्यूनोग्लोबिन आईजीई प्रोड्यूस कर देगा। अब ये इम्यूनोग्लोबिन आईजीए जो है वो क्या करेंगे, जो मास्ट सेल है बॉडी के अंदर, उसके ऊपर जाके ये जो इम्यूनोग्लोबिन है बैठ जाएंगे, आईजीई, आईजीई इम्यूनोग्लोबिन इसके अंदर जाके बैठ जाएगा। वेन सेकंड टाइम जब सेम एलर्जन आ जाएगा, तो ये एलर्जन इस इम्यूनोग्लोबिन को बाइंड करेगा, आईजीजी विच इज ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल। ये जो मास्ट सेल है उस मास्ट सेल के ऊपर जाके बैठ जाएगा, और मास्ट सेल एबल टू प्रोड्यूस हिस्टामाइन, वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, हिस्टामाइन प्रोड्यूस करेगा। ये हिस्टामाइन एक्शन ऑन blood circulation, which leads to produce a severe reaction, swelling of eyes, watering of eyes, right? So exaggerated reaction आ जाएगा, और अस्थमा भी हो जाएगा अगर इसको ट्रीट नहीं किए तो। हम एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स यूज करते हैं, एड्रेनालिन, एंटीहिस्टामाइन, एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स हम यूज करेंगे, दैट इज एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, राइट। सो ये ड्रग्स हम एलर्जी को कम करेंगे। सो ये एलर्जी एग्जैगरेटेड रिएक्शन है, और ये अभी हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब हम ऑटो इम्यूनिटी के, ऑटो इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या है कि ये ऑटो इम्यूनिटी मीन्स सेल्फ एंटीजन है, सेल्फ एंटीजन, सेल्फ एंटीजन जो बॉडी का रहता है उसके अगेंस्ट, क्योंकि ये जब एम्ब्रियोनिक लाइफ है, एम्ब्रियोनिक लाइफ जब है, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये एंटीजन कैन नॉट रिकॉग्नाइज बाय आवर cells, the cells which recognize the whole body, immunological tolerance कहते हैं हम उसको। जब ये उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगी, जब सच एंटीजन, ऐसे एंटीजन जब नॉर्मल सर्कुलेशन में आते हैं, नॉर्मल सर्कुलेशन, राइट, दे वर्क एज एंटीजन, दे वर्क एज एंटीजन, खुद का है, सेल्फ एंटीजन है, सेल्फ मॉलिक्यूल है, बट इट वर्क्स एज एंटीजन, और बॉडी रिएक्ट विथ इच, और उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी, उसको बोलते हैं हम ऑटो इम्यूनिटी। सो बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसीजेज जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस इज द बेस्ट एग्जांपल विच एबल टू प्रोड्यूस ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स। तो खुद के है, हाई लेंस प्रोटीन है, स्पर्म है, ये जो क्या करेंगे, सेल्फ एंटीजन बोल के काम करेंगे, और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करेंगे खुद के सेल्फ एंटीजन को, सेल्फ एंटीजन, राइट। ये ऑटो इम्यून हो गया, रूमेटाइड आर्थराइटिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट डिसीज, राइट। तो हम अब
लास्ट पोर्शन में जाएंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो जो इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम इज डिपेंड अपॉन द लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स है, इसलिए इम्यूनिटी हमारी अच्छी तरह से काम करती है। अगर ये लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं रहेंगे, इफ देयर इज नो लिम्फॉइड ऑर्गन, our immune system will not be developed. So lymphoid organs are the backbone of backbone of our immunity, our immune system, you can say our immune system, right? So lymphoid organs दो प्रकार के हैं, प्राइमरी lymphoid organ and secondary lymphoid organ, right? So प्राइमरी lymphoid organs जो है, वो सेंट्रल lymphoid organ है, वो that is bone marrow, right? Bone marrow and thymus, these are the two key organs, primary lymphoid organs. So cells of immune system are developed in bone marrow, right? Bone marrow, and they mature there. So T cell mature in thymus and B cell mature in bone marrow. So after the maturation, these cell travels to secondary lymphoid organ. They travels to secondary lymphoid organs. Secondary lymphoid organs में ये क्या करेंगे? Travel करेंगे. And generally antigen and antibody reactions generally occurs in secondary lymphoid organs such as lymph node. लिम्फ नोड इज द साइट, और हम उसको बंकर भी बोल सकते हैं, जब सोल्जर की बंकर रहती है उस तरह से लिम्फ नोड एक बंकर्स है। और ये लिम्फ नोड के अंदर, क्या होता है? बैटलिंग, एक्चुअल बैटलिंग बिटवीन पैथोजन एंड सेल्स, एक्चुअल एक्चुअल जो बैटलिंग है वो वहां पे होती है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो अब थाइमस देखेंगे, थाइमस प्लेस इन द सेंटर of the chest. At the birth, it is larger one. It is large, but when we attain the puberty, size is reduced to small. Very small size is reduced. It is the site for maturation of. It is the site of maturation of T cell. T cells को यहाँ mature होते हैं। Then जो bone marrow है, ये bone marrow है. Bone marrow is the largest part of our immune system. और ये बोन मैरो जो है, ये बोन मैरो नियर अबाउट 3 kg रहता है। अडल्ट में इट इज 3 kg ऑफ बोन मैरो, एंड इट डेवलप ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी विच डेवलप फ्रॉम बोन मैरो। सो अदर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ये लिम्फ नोड है, ये थ्रू आउट द बॉडी रहता है। इसके अंदर पैथोजन और एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है, हम बोलते हैं। स्प्लीन है, ये स्प्लीन इज रिजर्वायर ऑफ आरबीसी सेल, इसको हम ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोल सकते हैं। ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी इसको हम बोल सकते हैं। ये आरबीसी रिजर्वायर करता है। पेयर पैचेस है, ये पेयर पैचेस है। माल्ट है, सो ये माल्ट सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है। अगर हम लिम्फोइड सिस्टम का जब थिंकिंग करेंगे, तो ये जो पेयर पैचेस है, दे आर कैचेस माल्ट, they are large area, they covered, right? Large area they covered, right? So because of this lymphoid system, we can generally this without lymphoid system. So because of this, we can study the whole immune system. So these are the organs. हम अगले जब लेक्चर में आएंगे तो अभी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे हम आपसे इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।